Secularism. Secularism is where we respect each and every religion when the nation, when the country, when the state gives equality to all the cultures, all the religions specifically. So, when different cultures and community exist within the same country, how should a democratic state ensure equality for each of them? And this is the question that emerged in the previous chapter. And here we are going to understand key in India. The idea of secularism is ever present in public debates and discussions, yet there is something very perplexing about the state of secularism. मतलब कहने के लिए है लेकिन कई बार तो थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है. परप्लेक्स मतलब कंफ्यूजन. On the other hand, sorry, on the other hand, almost every politician swear by it. Every political party professes to be secular. Secularism is challenged not only by clerics and religious nationalists, but by some politicians, social activists, even academics. कि क्या हम वाकई में हैं? तो ये चैप्टर हमें बताता है कि what is the meaning, then what is the need, and how Indian constitution has adopted that need to some extent. दो ज्यूस, ये आपका हिटलर वाला जो पीरियड था तब का था, जहां पर हिटलर जो था ही हैड मेड इट, मतलब उनके लिए ये एक, मतलब दिस बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर द ज्यूस कि उन लोगों को वहां से निकल के जाना पड़ा था. ओ सॉरी. In the present state of Israel, Arab minorities, both Christians and Muslims, are excluded from social, political, and economic benefits available to Jewish citizens. मतलब अगर हम देखते हैं तो हिटलर वाला पीरियड देखोगे तो ज्यूस के साथ में हुआ था, और अगर अभी हम देखते हैं तो इजराइल के अंदर अरब माइनॉरिटीज, बोथ क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, इनको जो है बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते. Subtle forms of discrimination also continue to persist against non-Christians in several parts of Europe. मतलब जो लोग Christians नहीं है, means either Muslims or any other. The condition of religious minorities in the neighboring states of Pakistan and Bangladesh has also generated considerable concern. Such examples remind us of continuing importance of secularism for people and societies in today's world. अगर कोई भी state रिलीजन के आधार पर चलेगा ना, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पीपल इन माइनॉरिटीज. उनके लिए मुश्किल होता है. अगर आप यूएस वगैरह में जाते हो ना, वहां पर क्या है, दे डोंट इम्पोज. बट जैसे क्रिश्चियंस के लिए ओपननेस है ना, दैट इज नॉट देयर फॉर अदर पीपल. ठीक है, वहां पर लोगों को मजबूरी में रहना पड़ता, वो रहते हैं, फॉलो करते हैं, रूल्स बोलते हैं, लेकिन एक ओपननेस नहीं रहता. In our own country, Constitution declares that every citizen has a right to live with freedom and dignity in the part of country. Yet in reality, there are many forms of exclusion and discrimination continue to persist. For example, अब जैसे कैसे हुआ था, ये बहुत ही बढ़िया वाला टॉपिक है. More than 2,700 Sikhs were massacred in Delhi and many other parts of the country in 1984. The families of victims feel that guilty were not punished. अब ये जो है, what was this? और इसकी मैं जो हूँ जिंदा विटनेस. दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स इन योर 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है. Several thousands of Hindu Kashmiri Pandits have been forced to leave their homes in Kashmir Valley. They have not been able to return to their homes for more than 2 decades. More than 1,000 people were killed during the post Godhra riots in Gujarat. ये वाला पूरा का पूरा जो कांड है उसको एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया है from the book. Otherwise, it was also there in class 12th. The surviving members of many of these families could not go back to villages in which they lived.
तो ये तीन जो एग्जाम्पल्स हैं ये बताते हैं कि दो वी आर इंडियंस सेक्युलर, लेकिन ऐसे भी कई मौके आए हैं जब द रूलिंग पार्टीज कुड नॉट डू एनीथिंग, एंड जो माइनॉरिटीज में थे जिनका पॉपुलेशन कम था उनके साथ गलत हुआ. नाउ कम टू द फर्स्ट एग्जाम्पल. द फर्स्ट इज इन 1984 व्हाट हैपेंड इज, उससे पहले मतलब ये पूरा एक आपका ट्वेल्थ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर वाज अ मूवमेंट इन इंडिया व्हाट वाज कॉल्ड एज सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जिसमें सिख जो लोग थे उनमें से कुछ लोग, उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया था, एंड दे वांटेड अ सेपरेट खालिस्तान फॉर द सिख पंजाब, क्योंकि पंजाब के अंदर आपके सिख भी हैं और नॉन सिख्स भी हैं, दोनों हैं. तो जो ये जिन लोगों ने बनाया था अकाली दल, उन लोगों ने, ये लोग चाहते थे कि जो सिख लोग हैं उनके लिए अलग सा एक जगह बन जाए, विच द देन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी डिड नॉट अलाउ. उन्होंने, और ये भी कहा गया था कि ये जो मूवमेंट है इसको हमारे पड़ोसी देश स्पॉन्सर कर रहे हैं. देयर वर सो मेनी न्यूज अबाउट इट, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारे न्यूज है. जैसे आपको दिखाई देगा कि जो आपका ये स्वर्ण मंदिर है, द गोल्डन टेम्पल, उसके नीचे से देयर इज अ टनल गोइंग विच गोज टू द अदर पार्ट ऑफ पंजाब टुवर्ड्स पाकिस्तान. बहुत सारे न्यूज थे. तो एंड दिस मूवमेंट वॉज वेरी 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 वायलेंट, बहुत ही ज्यादा वायलेंट था. इसकी मैं जिंदा मिसाल हूं. यहां से लोग पंजाब जाते थे और वापस उनकी लाशें आती थी. द बसेस वर, मतलब कि उनको बसेस को बस पूरा जला दिया जाता. तो पहली बार इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि टेररिस्ट जो वर्ड मैंने सुना था ना, तभी सुना था. और इसीलिए मिसेस इंदिरा गांधी वॉज अगेंस्ट मेकिंग ऑफ एनी अदर स्टेट. अब उन्होंने जो है बहुत डिप्लोमेटिकली, बहुत सोच समझकर एक ऑपरेशन किया. मतलब वो जैसे ऑपरेशन सिंदूर है ना, वैसा एक ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार. उसके अंदर जो मिलिट्री के जो लोग थे, देवर इन प्लेइंग क्लोथ्स, एंड ऐसा उन लोगों को न्यूज मिला था कि स्वर्ण मंदिर में देर इज गोइंग टू बी सम मीटिंग, और जो इसके मेन हेड थे भिंद्रनवाल और वो लौंगवाल, दे आर देयर. और दिस ऑपरेशन के अंदर उन सबको मार दिया गया. जब उन सबको मार दिया गया तो इसको जो सिख लोग थे उन्होंने इसको अच्छा नहीं सुन देखा. उनको लगा कि इट वॉज एन अटैक ऑन देम. बिलीव मी, वो जो 20 दिन हमने देखे हैं ना अपनी जिंदगी में, दोबारा मैं नहीं देख सकती. द वर्स्ट पीरियड्स ऑफ, वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड्स ऑफ माय लाइफ. तो जो सिख लोग थे वो भड़के हुए थे, एंड मौका पाते ही अक्टूबर 30 1984 को उन्होंने इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी. वो जो दो बॉडीगार्ड्स थे, देवर सिख, जिन्होंने उनकी हत्या की थी. नॉर्मली मिसेस इंदिरा गांधी जो है वो अपना लाइफ जैकेट पहनती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहना था.
एंड जब वो अपने घर से बाहर गार्डन की तरफ आ रही थी तो मार दिया उसको। ये जो इंसिडेंट था, वो जो दो जने थे जिसको अब तो गवर्नमेंट ने भी माफ कर दिया, वो दो सिख थे। बस यही उनकी गलती थी, बस। अब जो बाकी लोग थे, दैट इज अदर देन सिख, वो भड़क गए। और भाई जो नवंबर 1 से लेकर 20 तक नॉर्थ इंडिया के अंदर जो अटैक्स हुए ना सिख के ऊपर, आए, मतलब मैं अभी में सोचूंगी ना तो मेरे रोंगटे कांप उठेंगे। बच्चे, मेरे ही क्लास के बच्चों को जिंदा पोल में डालकर जला दिया था। मतलब देयर वॉज एंटी सिख रायट एंड मोर देन 2700 पीपल वर किल्ड। और ये बिल्कुल सही है। बहुत सारे सरदारों ने तो अपने आप को मौना बना लिया था, मतलब अपने बाल कटवा लिए थे, बहुत सारे बेचारे। एंड जो गिल्टी थे उनको पनिश कर ही नहीं पाए। दिस शोज की जो पावर ऑफ सिख था, दैट वाज लेस देन अदर। द सेकेंड इज several thousands of Hindu Kashmiri Pandits have been forced to, बहुत सालों से चल रहा है, जब से वो आर्टिकल 370 हुआ है उसके बाद से हमारे पंडित लोग जो हैं वहां से निकाले गए हैं। वी हैव पीपल हु हैव लिव्ड ओवर देयर, इवन दो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको स्पेशल प्रिविलेज देता है, लेकिन वो लोग बेचारे अपने घर नहीं जा पाए, अपना घर बार छोड़ के आ गए बेचारे। थर्ड इज one of the controversial, difficult to explain in the open platform. There was a riot in Kodra, एक गाड़ी पूरी, मतलब ट्रेन जो है वो जला दी गई थी। तो उनके जो मेंबर्स हैं वो लोग वापस नहीं जा पाए। तो इससे क्या पता लगता है, दैट एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी के मेंबर्स have not been given the equal rights what others have got. They all have to do with the discrimination in one form or the other. In each case, members of one community are targeted and victimized on account of their religious identity. जैसे मैंने पहला आपको पूरा समझाया। तो द बेसिक फ्रीडम ऑफ अ सेट ऑफ सिटीजन्स आर डिनाइड। मतलब कहने के लिए हम सेक्युलर हैं, सबको बराबरी का हक है, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? दो सिख की वजह से पूरा सिख कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया गया? क्वेश्चन इज, क्यों टारगेट किया गया? सेक्युलरिज्म इज फर्स्ट एंड foremost a doctrine. डॉक्ट्राइन होता है एक written principle that opposes all such forms of interreligious domination. और सेक्युलरिज्म में इन चीजों की जगह नहीं होती, फिर क्यों थी? This is, however, only one crucial aspect of concept of secularism. An equally important dimension of secularism is its opposition to intra-religious domination. Now, what is intra-religious? इंटर होता है दो रिलीजन के बीच में, और इंट्रा होता है विद इन द रिलीजन। मतलब इंट्रा मतलब विद इन, इंट्रा मतलब विद इन। Some people believe religion is merely the opium of the masses, and that one day when the basic needs of all are fulfilled and they led a happy and contented life, religion will disappear. कुछ लोगों का मानना है ओपियम का मतलब होता है गांजा। मतलब जब हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी तो शायद हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे, कोई रिलीजन नहीं रहेगा। Such a view comes from an exaggerated sense of human potential.
It is unlikely that human beings will ever be able to fully know the world and control it. We may be able to prolong our life, but will never become immortal. हम 70 की जगह 80 साल जी सकते हैं ना, यही तो नहीं रहेंगे. Disease can never be entirely eliminated, nor can we get rid of an element of accident or luck from our lives. Separation and loss are endemic to the human condition. While a large part of our suffering is man made and hence eliminable, at least some of our sufferings are not made. Religion, art, philosophy, secularism too accepts this and therefore it is not anti religious. हमारी आधी से ज्यादा परेशानियां कहाँ से आती? हमारी आधी से ज्यादा परेशानियां आती है हमारे अपनी सोच से. और इनको हम हटा भी सकते हैं. जैसे हम रिलीजन पे लड़ाई करते हैं, आर्ट पे करते हैं, फिलोसफी पे करते हैं. भाई आपकी जिंदगी की फिलोसफी कुछ और है, मेरी जिंदगी की फिलोसफी कुछ और है. और हम लोग लड़ते पता है किस बात पे हैं? मेरी फिलोसफी ही सही है. क्योंकि मेरी फिलोसफी को मेरे मामा के भांजे के भतीजे के चाचा के नाना ने किया था, तो उनके साथ ठीक हुआ था, तो तुम्हारे साथ भी ठीक हो जाएगा. हम ये इस प्रिंसिपल पे चलते हैं, विच इज रॉन्ग. टू पीपल. हमारे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, व्हाट यू कॉल एज इन साइकोलॉजी, इसी के ऊपर है. इवोल्यूशन डेवलपमेंट जो थर्ड चैप्टर है ना हमारा साइकोलॉजी का, वो यही है कि हम अलग अलग तरीके से इवॉल्व होते हैं. तो जब हम अलग अलग तरीके से इवॉल्व होते हैं, तो नेचुरल है कि हमारा जो है सोच भी अलग होगा. हम अलग अलग टाइम पर पैदा हुए हैं, तो वो भी अलग होगा. हमारी परवरिश अलग है. तो जो रिलीजन है, इट कैन नेवर बी द सेम. जैसे अगर मैं कहती हूँ, घर में होता है, मैंने ये पूजा की, मैंने वो पूजा की. दूसरा कहता है कि नहीं तुम्हारी पूजा गलत है. मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है सोशल मीडिया पर. सच में कह रही हूँ. कभी गलती से भैया एक कुछ पूछना है, कुछ देखने के लिए आपने गूगल में कुछ डाल दिया, और सोशल मीडिया पे उसके आपके बहुत सारे रील्स आते हैं. अगर आप इस रील को शेयर नहीं करोगे तो आपके साथ बुरा होगा. क्यों होगा भाई बुरा? मेरी मर्जी नहीं करनी है भाई मुझे शेयर. इस रील को शेयर इग्नोर मत करना. नहीं करना भाई, मुझे इग्नोर करना है. बट पीपल ट्राई टू मेक यू bully. Thus, religious domination cannot be identified only with inter-religion. It takes namely intra-religious, मतलब अपने रिलीजन के अंदर ही. अब सेक्युलरिज्म में तो ये है कि भाई आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, आप एक हो. लेकिन विद इन हिंदू ऑल्सो देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स. देन as secularism is opposed to all forms of institutionalized religious discrimination, it challenges not merely inter but intra. जैसे कुछ लोगों का मानना है, अभी मैं रिसेंटली पढ़ रही थी, इंस्टाग्राम के थ्रेड्स पे था, इंस्टाग्राम के थ्रेड्स पर था, सनातन धर्म कहता है कि औरतों को बाहर जाकर काम नहीं करना चाहिए. मैंने कहा क्यों भाई? तेरे घर में कमाने वाले चार होंगे, बहुत अच्छी बात है, मेरे घर में नहीं है, जाना पड़ता है, क्या करना. सनातन धर्म. तो जो ये इस तरीके की जो चीजें होती है ना, दिस बिकम्स पॉइंट ऑफ डिबेट, पॉइंट ऑफ डोमिनेशन. We now possess a general idea. It is normative doctrine which seeks to realize a secular society that is one devoid of either inter-religious or intra-religious domination. Put positively, it promotes freedom within religion and equality. Within this larger framework, let us now consider a narrower and more specific question. What kind of state is necessary to realize these goals? अब सेक्युलरिज्म का मतलब है हमें सबको इक्वालिटी देंगे, बट कैसे देंगे? हाउ टू? जैसे मैंने बोला कि एक इंसान कहता है ये हमारा धर्म है, आप उस इंसान को कैसे समझाओगे?
नौकरी करना नहीं करना वो सबकी अपनी मर्जी होती है, उसमें धर्म कुछ नहीं कहता है. आई टोल्ड दैट पर्सन, आई सेड गो एंड स्टडी श्रीमद् भगवत रामायण एंड सी दैट माता सीता also said that girls should be always independent. तो धर्म के नाम पर हम जो ये कर्म करते हैं ना, ये हमारे लिए एक डिबेट बन जाता है. बट नाउ हाउ गवर्नमेंट विल डील सच डिबेट्स, क्योंकि गवर्नमेंट ना मेरी सुन सकता ना उनकी सुन सकता है. उनको बोलेगा तो मैं चिल्लाऊंगी, मेरे को बोलेगा तो वो चिल्लाएंगे. तो हाउ हाउ टू प्रमोट? Perhaps one way of preventing religious discrimination is to work together for mutual enlightenment. Education is one way of helping to change the mindset of people. Individual examples of sharing and mutual help can also contribute towards reducing prejudice and suspicion between communities. It is always inspiring to read stories of Hindus saving Muslims or Muslims saving Hindus in the mid of a deadly communal riot. जब हम पढ़ते हैं ऐसे, मतलब कि देयर हैव बीन रियलिटी में, जो मैं भी आपको 1984 का बता रही थी, कम्युनल रायट. तो हुआ क्या था, हम लोग रहते थे पंजाबी मोहल्ले में. तो सबसे लास्ट वाला घर था पंजाबी अंकल है वो करीब. फिर हमारा घर था. फिर हमारे घर के एकदम साथ वाला बराबर वाला सरदार का घर था. फिर नेक्स्ट इज खुल्लर. उसके बाद दोनों बनियों का घर था, लास्ट के दोनों. तो जो हमारा मोहल्ला था, एंड यू नो हमारे मोहल्ले की तारीफ बीबीसी न्यूज में हुई थी. वी वर सो प्राउड. तो उस वक्त में क्या था, जब ये कांड हुआ था, दिस रायट हैपेंड, तो सिख लोगों को घरों से पकड़ पकड़ के लेकर जाते और उनको मार देते. नाउ देयर वर सम ऑफ द पीपल लाइक इन विष्णु गार्डन मेरी बेस्ट फ्रेंड रहती थी. उनके एरिया में, हमारे एरिया में, हम लोगों ने ये ठान लिया था कि जो हमारे पड़ोसी हैं उनको आंच भी नहीं आने देंगे. और उसके लिए वो जितने 7 घर थे ना हमारे, 7 के 7 घर में, मतलब मेरे घर में तो पापा ही थे, पड़ोस अंकल के तो पापा और विक्की भैया थे, इधर में 2 थे, उनके घर में 2 थे. ऐसे सब जेंट्स ने बनाया कि रात को वो लोग पहरा देंगे हाथ में डंडा लेकर. एंड सारी की सारी लेडीज जो है मिलकर सांझा चूल्हा में खाना बनाएंगी, 9 घर के अंदर खाना. और सारे बच्चे जो हैं वो 2 घरों में ही रहेंगे. और किसी को ये नहीं पता होगा कि वो जो सरदार के बच्चे हैं वो हमारे साथ है या उनके साथ है. पेट्रोलिंग होती थी रात को, बट जो आपके एलिमेंट्स है वो भी घूमते थे. एंड वो जो 20 दिन हमने निकाले थे, हम लोग बहुत छोटे बच्चे थे, तो हम एक दूसरे से बोलते थे अब हम मर जाएंगे ना, अब हमारी आवाज आ रही है ना, अब हमारे पास आएगी ना, ऐसे करके. बट बट when the riots were over, when it came that कौन कौन से इलाकों में, तो हमारा जो नाम था वो बीबीसी न्यूज में भी आया था, विवेक विहार का जो ए ब्लॉक वाला, एंड विष्णु गार्डन में. वी प्रोटेक्टेड दो सिट्स. तो ऐसा नहीं है कि हिंदूज ने मुस्लिम्स के लिए नहीं किया है. गदर मूवी में देखो आप, मुस्लिम्स ने हिंदूज के लिए किया है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर ह्यूमंस. In modern society, states have enormous public power. How they function is bound to make a crucial difference to the outcome of any struggle to create a society less ridden with inter-community conflict and religious discussion. For this reason, we need to see what kind of state is needed to prevent religious conflict and promote religious harmony. और सबसे अच्छी बात है, एक दूसरे की अच्छाइयां समझो. Example, A.R. Rahman basically was a Hindu, but he adopted Islam. बट आई थिंक हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने A.R. रहमान का म्यूजिक ना सुना हो. टेक द सेलिब्रिटीज, ऑल ऑफ देम आर इंटर-religiously मैरिड. शाहरुख मैरिड टू गौरी, एंड
दे वर्क इन मूवीज विच आर फॉर द कॉमन मास। तो फिर कहां से आ गए हम? नीतू सिंह इज अ सिख, ऋषि कपूर की वाइफ, रणबीर कपूर की मम्मी। आलिया भट्ट, उसकी जो नानी थी, देव शी वॉज अ कश्मीरी, उसके मतलब कि कुछ रिलेटिव्स फॉरेन के थे, बट शी इज बॉर्न टू महेश भट्ट, मैरिड टू रणबीर कपूर, एंड रणबीर कपूर's mother is a Sikh, and they are entertaining all of us. तो कहाँ पे हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर सकते हैं? तो वी नीड टू प्रमोट दैट। हमें समझ आना चाहिए ये प्रमोशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। फॉर अ स्टार्ट, अ स्टेट मस्ट नॉट बी रन बाय द हेड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर कोई भी कंट्री रिलीजियस क्लरिक के अकॉर्डिंग चलेगा तो वो तो सिर्फ अपने ही रिलीजन को प्रमोट करेंगे। A state governed directly by a priestly order is called as theocratic। पेपर में आता है थियोक्रेटिक किसको कहते हैं? जिसमें कोई प्रीस्ट जो होता है वो हेड होता है। Theocratical states such as papal states of Europe in medieval times or recent times the Taliban controlled state, जहां रिलीजियस क्लरिक्स जो है वो डिक्टेट करते हैं लड़कियों को क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। दे डिफरेंशिएट बिटवीन द रिलीजन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। और इस वजह से क्या होता है? प्रॉब्लम्स खड़ी होती। इफ वी वैल्यू पीस, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी सेपरेटेड। रिलीजन का अपना एक दायरा है। आप भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू, बट आपके अपने कुछ रूल्स है, मेरे कुछ अपने रूल्स है। आपके अपनी कुछ सोच है, मेरी कुछ अपनी सोच है। वही संक्रांत को अलग अलग तरीके से मनाते हैं हम, उसी नवरात्र को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तो रिलीजियस, अगर अगर कोई गवर्नमेंट हमें कहता नहीं आपको संक्रांत ऐसे मनाना चाहिए बिकॉज हम कह रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? सम पीपल थिंक separation of state and religion is sufficient for the existence. No, this does not appear to be so. Many states which are non-theoretical continue to have a close alliance with a particular religion. For example, the state in England, it was not run by a priestly caste, but it favored the Anglican Church and its members. England established Anglican religion, which was official religion of the state. Today, Pakistan has an official state religion, that is Sunni Muslim. Such regimes may leave little scope for internal dissent or religious equality. तो मतलब वहां रिलीजियस कम्युनिटी नहीं है, लेकिन वो लोग उस रिलीजन को ज्यादा मान देते हैं। To be truly secular, a state must not only refuse to be theoretical but also have formal legal alliance। उनको किसी रिलीजन से अपना वास्ता नहीं रखना चाहिए, किसी रिलीजन को उन्हें प्रमोट नहीं करना चाहिए। A secular state must be committed to principles and goals which are at least partly derived from non-religious sources। मतलब पीस, रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन, as also interreligious and intra-religious. To promote these ends, the state must be separated from organized religion and institution for the sake of some of these values। बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। अगर हम किसी भी प्रिंसिपल पे चलते हैं कि हमें इस रिलीजियस प्रिंसिपल पे चलना है, तो नेचुरल है कि वो दूसरे लोगों को, इवन विद इन दैट रिलीजन ऑल्सो मेनी पीपल विल नॉट लाइक इट। However, there is no reason to suggest that this separation should take a particular form. The nature and extent of separation may take different form depending upon specific values it is meant to promote and the way in which these values are spelled out। तो ये हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे कि कैसे it has been representative by the American alternative conception that is best, Western modern and Indian model of security। मतलब हम लोग जो है इंडियन मॉडल को लेते हैं, वेस्टर्न मॉडल को लेते हैं, फिर उसके जो what you call as the
क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म, ये हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है।